Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani and today we'll be solving 2026 examinations specimen paper. Now this is a series of specimen paper that council has issued for 2026 examinations for ICSE and ISC. Okay, so we are starting from English language class 10 and in this they have first issued the format for notice and letters, that is formal and informal letter and email and notice writing. तो आज हम लोग लेटर राइटिंग का पार्ट करेंगे फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. सबसे पहले वील टेक द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर जिनका उन्होंने एक स्पेसिमेन इशू किया है, दैट विल बी फॉलोड नाउ. द क्वेश्चन सेज दैट योर ग्रैंड मदर हैज़ टॉट यू ए स्पेशल स्किल. राइट अ लेटर थैंकिंग हर. एक्सप्लेन हाउ यू विल यूज़ दैट स्किल एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यू. तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपकी ग्रैंड मदर ने आपको एक स्किल सिखाई है. इट कैन बी एनी स्किल like music, cooking, basic life skills can be there, household chores भी can be there. ठीक है, anything. यूजुअली क्या होता है कि हम अपने ग्रैंड मदर से कुछ सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल ट्रिक सीखते हैं. ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का कोई टोटका सीखते हैं, कोई रेमेडी सीखते हैं, या एनी सॉर्ट ऑफ ड्रिंक दैट हेल्प्स अस ड्यूरिंग आर अनहेल्दी टाइम पीरियड, वो सीखते हैं. या फिर एनी सॉर्ट ऑफ कुकिंग स्किल्स हम लोग सीखते हैं, खाना बनाना से रिलेटेड. तो उसी से रिलेटेड यू हैव टू राइट अ लेटर टू हर दैट द स्किल दैट शी हैज़ टॉट यू इज़ वेरी यूजफुल एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. तो यहाँ पर यू विल राइट द एड्रेस. ठीक है, दैट इज़ द सेंडर्स एड्रेस. ओके, तो दिस इज़ द सेंडर्स एड्रेस मीन्स दैट इज़ योर ओन एड्रेस. फिर you will be writing here the date, leaving one line. You will be writing here your date, then you will leave another line and you will write your dear grandmother. ठीक, dear is necessary to be written, and every time you will leave a line, see the format how it is done. Then again you will leave one line, और यहाँ पर the line leaving is optional. If you will not leave it then also it's fine. तो यहाँ से ठीक उसके बाद यू कैन स्टार्ट इट. वॉट इज़ रिटन हियर दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू कुक लास्ट समर. दिस इज़ द ओपनिंग लाइन दैट यू कैन यूज़, और you can use the opening lines as well that I've used a few lines in the format also. जैसे I hope you are fine and I am also sailing on the same boat. ठीक, तो ऐसे बहुत सारी opening lines हैं that you can write it, but here the answer is directly told कि I would like to thank you for teaching me how to cook last summer. This special skill has brought so much of joy and excitement into my life. Now अब you have to tell कि any two reasons कि why is it useful and important to you. Helping out in preparing meals for the family when parents are busy and discovering new recipes to cook is fun. तो अब सबसे पहले उसने क्या बताया है कि whenever the family parents are busy, उस टाइम पर to cook in the family is a great fun, and sometimes to discover new and new recipes is also very wonderful. Then it is wonderful to watch the expression of my delight on my sister's face when I place that steaming hot bowl of soup in front of her. फिर second reason उसने क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि and whenever I give him I make a recipe and I serve it to my sister, उसके face पर एक बहुत ही अच्छी सी happy expression आ जाता है. I now make our tiffin and even bake cakes for birthdays. Now this is another helpful thing कि हाँ अब जो है मैं केक बेकिंग भी करता हूँ and I can tiffin also I can make when I stay in the hostel later for my higher studies. Now why it is important to you is also written कि I will be able to make a home cooked meal for myself and for my friends. This is another reason that is given. दो parts पूछे गए थे कि कैसे useful है and how is it important to you. ठीक, तो पहली चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि अब ये चीज़ फ्यूचर में मुझे कैसे काम आएगी. तो इट इज़ रिटन कि जब भी बाद में हायर स्टडीज़ के लिए आई विल गो, आई विल बी एबल टू मेक होम कुकड फूड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फ्रेंड्स. एंड आई ऑल्सो होप दैट someday I start, and this is another important thing that कि someday I might open up a small bakery
लर्निंग दिस स्किल हैज़ गिवन मी कॉन्फिडेंस आई नीड टू डू दिस. ठीक है, काउंसिल हमेशा क्या करता है कि वो आपसे जब भी क्वेश्चंस पूछता है लेटर राइटिंग में, वो डिवाइड कर देता है उसको पार्ट्स में. तो वो पार्ट्स में जब वो हिस्सों में डिवाइड करता है, हर उस हिस्से के आपको मार्क्स देता है. जैसे यहाँ पर द व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इट वाज आस्क्ड कि हाउ यू विल यूज़ दैट स्किल, आप उस स्किल को कैसे यूज़ करोगे एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यू. तो उसने 2 रीज़न्स दे दी कि हो सकता है कि मुझे हॉस्टल में वो काम आए एंड मैं उसकी बेकरी ओपन करूँ. यहाँ पर उसने बोला कि इट विल हेल्प मी इन कुकिंग एज वेल एज मेकिंग माई ओन टिफिन, आई कैन डू एवरी ऑल सच थिंग्स. तो यहाँ पर उसने 2 रीजन्स करके डिवाइड किया एंड दिस इज हाउ वेन एवर मार्किंग्स आर डन इन द क्वेश्चन पेपर ड्यूरिंग बोर्ड. सो वो ऐसे ही मार्क किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इसके बाद इसमें द क्लोजिंग लाइन्स आर गिवन हेयर. ठीक, क्लोजिंग लाइन्स में आई लुक फॉरवर्ड टू शेयरिंग फोटोग्राफ्स विद यू ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स ऑफ कुकिंग, आई होप यू विल एन्जॉय देम. तो एंड में वो कहता है, वो मतलब वॉट एवर थिंग्स आर रिटन इन द पैराग्राफ, इट इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू द लेटर ओनली. वो कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा, आई विल बी शेयरिंग फोटोज़ विद यू of my experiments whatever I have cooked and I hope you like these photographs. ठीक, फिर उसके बाद leave one line and then yours affectionately Rita. Always your first name will be written whenever you are writing an informal letter and don't leave a line in between. It's okay. इतना मतलब if obviously this line is not given, तो ये दोनों चीज़ें आप साथ में लिख सकते हो, but leave a line here. ठीक, नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर. अब फॉर्मल लेटर का डिवीजन भी ऐसे ही होता है, उसका बस जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. नाउ देयर इज नो बस स्टॉप इन योर लोकेलिटी. एक कंडीशन दी गई है कि आपकी लोकेलिटी में कोई भी बस स्टॉप नहीं है. यू हैव टू राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर टाउन और सिटी कंप्लेनिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड ऑफर पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट यू हैव. ठीक है, तो नाउ वेन एवर वी स्टार्ट दिस, तो उन्होंने क्या किया, अगेन उन्होंने जितना भी फॉर्मेट है वो पूरा, अर्लियर 2 फॉर्मेट्स वर इशूड इन 2018-19. अभी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरा फॉर्मेट जो है वो एक ही साइड पर ही, लेफ्ट साइड पर ही शिफ्ट कर दिया है. तो दिस इज सेंडर्स एड्रेस. Okay, that is your own address where you live. 3 lines में you can mention it, comma and then the city and the pin code. ठीक, then leave one line in between. Write the format of date correctly जैसा उन्होंने दिया हुआ है. Like if today is 24th July, तो I will write here 24th July, comma is not given, then don't write comma, and 2025 प्लस फुल स्टॉप. ठीक, फिर उसके बाद लीव अ लाइन इन बिटवीन एंड देन द रिसीवर्स एड्रेस, किसको जा रहा है, हु इज़ गोइंग टू रिसीव दिस लेटर, उनका एड्रेस हैज़ टू बी रिटन. Here it is written in 4 lines. You can also write it in 4 lines. Otherwise 3 lines are also okay. The municipal commissioner, the person, the Kolkata Municipal Corporation, the department. ओके, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको ये जो डिवीजन है ये करना कैसे है. फिर आप वहाँ का एड्रेस लिखोगे एंड अगेन द सिटी प्लस द पिन कोड. सिटी, स्टेट, पिन कोड दूसरे जगह पर है तो यू विल राइट द स्टेट, डायरेक्टली राइट द स्टेट ऑफ इट. ठीक, एंड द पिन कोड टू बी रिटन. देन उसके बाद मैडम, दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड रिस्पेक्टेड या फिर डियर जैसे उन्होंने पहले भी यूज़ किया है. नहीं यूज़ किया है मत करो, नहीं यूज़ किया है डोंट यूज़ इट. ओके, कोलकाता के बाद लीव अ लाइन. दे हैव नॉट गिवन द स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट. यूजुअली जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसको लिखते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, बट हेयर इफ सब्जेक्ट इज़ नॉट मेंशन, डोंट मेंशन द सब्जेक्ट. जैसा दे हैव गिवन यू जस्ट राइट एज इट इज़. फिर leave a line here, then after that madam, you can also leave a line here, otherwise it is optional. नहीं भी छोड़ोगे तभी भी चलेगा क्योंकि everywhere they are left, तो I will not suggest you to leave the line everywhere, but madam से पहले you leave it. अब बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर this place पे we belong. ठीक, that is ward number this and this in the north. हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने, आई वॉज सीइंग द एड्रेस, तो वो उन्होंने नहीं दिया हुआ है.
तो दिस इज़ अ सेपरेट एड्रेस जो उन्होंने किया कि हम यहाँ पर इस जगह पर रहते हैं अंडर नॉर्थ वेस्ट सेक्टर ऑफ कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब कि ये वो एरिया है जिसके अंडर हम लोग आते हैं। आपके डिपार्टमेंट में जो एक एक एरिया सबको बटा हुआ है उसमें हम लोग इस डिपार्टमेंट में आते हैं। Unfortunately, there is no designated bus stop either in the street we live in or even within the reasonable walking distance। जितने एरिया में हम लोग होते हैं वहाँ पर कोई भी एक ढंग का बस स्टॉप है ही नहीं, इवन है ही नहीं कोई बस स्टॉप। Children we have living in the area find it difficult to walk long distances to school, और just because कि बस स्टॉप नहीं है तो बस will not stop obviously। बस स्टॉप्स होते हैं जहाँ पर people gather, they wait for the bus and bus comes and stops, तो वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पर। सो दैट इज़ वाई जो चिल्ड्रन है वो बहुत दूर, दे हैव टू गो अवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड दिस ऑफन कैरी हैवी स्कूल बैग्स, और ऑब्वियसली कि वो उनके पास हैवी स्कूल बैग्स होते हैं। ऑफिस गोअर्स ऑल्सो, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, दे ऑल्सो फाइंड देमसेल्व्स डिफिकल्ट क्योंकि उनको लेट हो रहा होता है एंड दे हैव टू हायर टैक्सीज दैट आर ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि बस का किराया, बस का फेयर इज़ ऑब्वियसली वेरी चीप एज कम्पेयर टू द टैक्सीज। इफ़ यू शेड्यूल, अब देखो इन्होंने यहाँ पर अगेन आई विल डिवाइड इट, दे हैव गिवन 2 रीजन्स हेयर। एक बच्चों वाली बात उन्होंने बताई, एक उन्होंने ऑफिस गोअर्स वाली बात बताई, ठीक है, कि व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एंड हाउ यू आर गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन। इफ़ यू कुड शेड्यूल एंड इंस्पेक्शन इन द एरिया एंड अरेंज फॉर अ बस स्टॉप टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो ये एक पहला ऑल्टरनेटिव उन्होंने दिया है एज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट यू विल मेंशन चिल्ड्रन। ओके, if you could schedule an inspection of the area and arrange for a bus stop to be constructed in our locality, it will be very grateful। then a shuttle service would be another alternative, तो ये भी एक alternative है that can be given as a solution। फिर we would be grateful if you look into the matter and take necessary steps as soon as possible। okay, तो दिस इज़ द कंक्लूडिंग लाइन दैट इज़ रिटन हेयर। तो उन्होंने क्या बताया है कि इफ़ वी विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू लुक इन टू द मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स एज सुन एज पॉसिबल, ये एक बहुत ही कॉमन सी कंक्लूडिंग लाइन है दैट इज़ देयर। अभी हम 2026 एग्जामिनेशन की जो प्ले लिस्ट है, व्हेन आई मेक दिस प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आई विल बी एडिंग द वीडियोज़ जो फॉर्मल लेटर की ओपनिंग लाइन्स और इनफॉर्मल लेटर की ओपनिंग लाइन्स आई हैव गिवन अ वीडियो ऑलरेडी, ठीक। So that I will add it into that playlist. You want to share it with your friends, you can share it. After that you will leave one line here and then you will write here the complimentary clause, ठीक, yours faithfully, your name and your name in capital letter here। okay, इनिशियल्स और ये सब चीज़ें डोंट डू, नॉर्मल नाम पे लिखो और ब्रैकेट में यू राइट इट इन कैपिटल लेटर एज वेल। ओके, दैट्स इट, कंक्लूडिंग लाइन्स, उसके बाद योर्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, yours faithfully, and then the name in the formal letters. Then notice an email is also given, so this we will do in the another part. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.